Hi student, we are here to read our new topic, that is nutrition, as we have read before our previous topic, that is all about introduction of life process. So now come to our new topic, that is nutrition. Okay, so are you familiar with the word nutrition? I'm sure you are, because we often heard of the term nutrient, something or the food material which is good for health. हम लोग सुने ही हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग सुने होंगे, ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं, जैसे आप लोग टीवी देखते होंगे ना, तो आप लोग टीवी में क्या देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे बिस्किट्स का, डिफरेंट बिस्किट्स का, एनर्जी ड्रिंक का, है ना। व्हाट दे से दैट दीज आर न्यूट्रिशियस ना, इट हैज़ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन विच आर गुड फॉर आवर बॉडी, राइट। वो क्या कहते हैं कि इनके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, आप ये बिस्किट लें, ये एनर्जी ड्रिंक लें, इसके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। सो this is all about the nutrients. Okay, so life process is all about the food. Okay, कि food के ही कैसे हम लोग food लेते हैं ना, तो food is obtained by an organism, how the food is taken in, once the food is taken in, after that how is that food is absorbed and how is that food is utilized for the energy. So these are the things which we will talk about in न्यूट्रिशन, ठीक है, कि कैसे हम लोग फूड लेते हैं, है ना, और कैसे ये जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, कैसे हमें इससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। ओके, सो from where the living organism get it, and from where does it get it food, and how it takes the food inside his body, and what happens to the food. Okay, for doing any kind of the work we need energy. Okay, and this energy comes from food. We know well about this energy is come from food. Okay, so we will read about this only. Okay, so we are clear with the word, that what is nutrition. Okay, what is nutrition? So we come to our next point. The process of taking food and utilizing it is called nutrition. Process of consuming, obtaining food, लेते हैं food को और फिर जो हम इसको utilize करते हैं, that utilizing is what, that utilizing is for gaining energy. Okay, so that is called nutrition, because food is a kind of fuel which provide energy. Okay, and the living beings need it. Okay, living beings use the chemical energy for carrying out the various life processes. They get this chemical energy from food through the chemical reaction. Okay, actually what happened, the living organism continuously need energy for their various life processes and other activity which they perform. हम लोगों को कंटिन्यू चाहिए होता है लाइफ प्रोसेस, कंटिन्यू हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है फॉर सस्टेनिंग आवर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ओके, so जैसे कि अब इवन द ह्यूमन नीड एनर्जी वाइल दे आर asleep. ओके, आप बोलेंगे मैम जब सो रहे हैं तो क्यों एनर्जी चाहिए, बिकॉज आवर हार्ट कंटिन्यू टू बीट, दे आर नॉन स्टॉप, non-stop beating, and for that, for pumping blood through the heart, we need what, we need energy. Okay, so the energy required by an organism come from food that the organism eat. So the food is the basic requirement for the all living organisms to obtain energy. Okay, so in this we will study that process of intake and utilization of the food by an organism, that is nutrition. liberation of energy, जो लिबरेट होगा एनर्जी फूड में से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. उसके बाद जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो एक वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो मूवमेंट होगा, ओके, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और जब हम लोग का वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. So let's now come to the our topic, nutrition. Okay, so first of all, what is mean by food. Okay, तो food क्या है, so food is the organic substance. Okay, food is the organic substance. Okay, the simplest food is what, simplest food is ग्लूकोज. और यही जगह बहुत सारा ग्लूकोज अगर मिल जाता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च. ठीक है,
ये आप लोग याद रखिएगा, ये बाद में भी काम आएगा, ठीक है। बहुत सारा जब ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं स्टार्च को, ठीक है। और जब ये मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। बहुत सारा जब ग्लूकोज मिलता है तो हम लोग को स्टार्च मिलता है, ओके। पॉलीसेक्राइड है स्टार, मोनोसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारा, मोनो मतलब एक, सेक्राइड्स मीन्स होता है शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है। तो अब स्टार्च क्या है, स्टार्च एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट कॉमन फूड है जो हम लोग, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। फैट्स आर प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फूड, ओके। मिनरल्स आर ऑल्सो, विटामिन्स आर ऑल्सो, ओके। बट वी बेसिक इज द carbohydrate, okay. So nutrition is a process in which the food is obtained in order to utilize it and performing various metabolic activity, ठीक है। तो हम लोग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मतलब सब समझ गए, ठीक है। हम लोग फूड को लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द एनर्जी। हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, क्यों यूटिलाइज करते हैं, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, तो न्यूट्रिशन आता है न्यूट्रिएंट से, ठीक है। अब हम लोग को समझना होगा कि न्यूट्रिएंट क्या है, ओके। So, nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy for biosynthesis of its body constituent, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है, बाय फूड मिलता है, और वो लोग किसके यूज़ करते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट बॉडी कंस्टिट्यूएंट, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, लाइक फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो क्या है कि आप जैसे अभी बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं भी कभी बच्ची होती थी आपकी तरह, और अब मैं बड़ी होगी, तो सो आई हैव द ह्यूज वन, आई हैड द हाइट, आई हैड द वेट, सो you know what, we need nutrition for growth, for development, okay, for repaying our skin, okay. Now we move to our next topic. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बायोसिंथेसिस मीन्स टू सिंथेसिस आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यू और ऑर्गन, ओके। टिश्यू ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ओके। सो now what happened, that mode of nutrition, okay. So mode of nutrition का मतलब क्या है, mode of nutrition का मतलब है how an organism obtain food, okay, how an organism obtain food. So all the organisms do not obtain their food in the same way. सारा organism एक ही तरह से food नहीं लेता है, ठीक है। different organism के पास different methods हैं food को लेने के लिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर मेथड, उनके मेथड पे ही हम लोग ये पढ़ते हैं, कितने ग्रुप में बांटा गया है, दो, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस टू टॉपिक, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब क्या है इस वर्ड का मतलब, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए पहले आते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड में अभी बताया ऑब्टेनिंग, ओके। सो नाउ ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, सेल्फ न्यूट्रिशन, ओके। सो in this mode of nutrition in which an organism make or synthesis its own food from the simplest inorganic material like carbon dioxide, water present in the surrounding with the help of sunlight energy is called as autotrophic nutrition, okay। तो क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, अपना खाना वो खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, खुद से, विद द यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, नेचुरली अवेलेबल है, वाटर है। जो खाना इनऑर्गेनिक मटेरियल से, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज बनाते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपको अभी ये आप याद रखिए, जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट। सो ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट के पास ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें ऑटोट्रॉफिक में हम लोग दो मोड देखते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक में हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि एक तो होता है फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक, ठीक है, कीमो। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेटिक और व्हाट डू यू मीन बाय कीमोसिंथेटिक, ठीक। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करके अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड सो दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब कीमोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कीमो का मतलब हो गया है कि they utilize the chemical, okay, and derive from the chemical. So these organisms use chemical energy which is released during oxidation of the organic compound to prepare their food. ये क्या करते हैं कि ये chemical energy यूज करते हैं, ठीक है, और chemical energy यूज करके अपना क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, कुछ सर्टेन जो है बैक्टीरिया आते हैं और फ्यू बैक्टीरियाज एंड एल्गी, ओके। बैक्टीरिया में आप एग्जाम्पल ले लीजिए सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है वो कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सल्फर बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया सॉइल में मिलते हैं, हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, ओके। सो हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स और प्लांट्स के साथ ही कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो होंगे, फ्यू बैक्टीरिया, ओके। चलिए अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग प्लांट देखें, अब देखेंगे हम लोग कि प्लांट जो है वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक का, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका क्या, ये है कैरेट, ये क्या है, मीट, ठीक है, ये दोनों प्लांट है, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ओके। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। कैसे न्यूट्रिशन प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो कैसे अपना फूड बनाता है, ठीक है। आइए चलिए हम लोग इस पे देखते हैं, या दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या, फोटो मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि फोटो मीन्स क्या है, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, ओके, टू बिल्ड। So plant prepare their food in the presence of light and this is called only photosynthesis। तो हम लोग को चाहिए क्या, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे पढ़िए डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज and from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो है वो खुद का खाना बनाते हैं विद द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाट इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। सो प्लांट मेक food using sunlight and water which provide nourishment to the other organism and their cells। अब क्या होता है, प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं और हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स और जो भी आगे जो एनिमल है वो उनको क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो कैसे होता है, अब हम लोग देखिए कि इसमें सबसे मेन जो कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल, ठीक है। तो हम क्लोरोफिल में आते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ओके। क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस का, सबसे पहला है क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये क्लोरोप्लास्ट
एक सेल ऑर्गेनिक है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. यू हैव read about the chloroplast, a kind of plastic which is green in color. Okay, in 9th class you have read that in cell chapter. Okay, now so now what happened, the light energy is used to split into water and hydrogen and oxygen. जो light energy use होता है वो split किसको कर देता है, water को, और water को split किस में करता है, hydrogen और oxygen में. ठीक है. So now next point is hydrogen is then used to reduce carbon dioxide into the carbohydrate, टिपिकली ग्लूकोज. फिर हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में, जो कि कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमाटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, स्टोमाटा एसेंशियल है फॉर इनटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे कहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है इनसाइड. तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए इस इक्वेशन से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं. जैसे कि हम लोग ने पहला पढ़ा क्या कि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था क्लोरोफिल चाहिए था. ठीक है. और दूसरा हम लोग को चाहिए था क्लोरोफिल चाहिए था. ठीक है. फिर हाइड्रोजन देख रहे हैं हम लोग. तो नीड क्या है हम लोग को, सबसे पहले तो नीड है सनलाइट की. तो सनलाइट कहाँ आता है, नेचुरली अवेलेबल होगा. ठीक है. और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ है, इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनिक, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है. ठीक है. वो कहाँ है, लीव्स में है. ठीक है. और लीव्स के ही सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. ठीक है. अब सनलाइट तो नेचुरली अवेलेबल हो गया. ठीक है. सेकेंड इज वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से, एंड द रूट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब इट. ओके. एंड CO2 we get CO2 from the air by the small pore present on the leaves, that is called stomata. Okay. Now what happened, that chlorophyll absorbs solar energy. Okay, and this solar energy is then converted into the food. Okay, so solar energy is basically synthesis to get the food, and food is prepared once, then it will stored in the plant in the form of glucose. Okay, this is clear. Now we come to the next topic, that is our equation for the photosynthesis. So we know that what are the need of the photosynthesis. So this is, plant use carbon dioxide, inorganic material, hydrogen and light energy, okay, to synthesis this glucose. This is what, glucose, and it liberates the oxygen. Okay, in the presence of chlorophyll and in the presence of sunlight. In the presence of, here we will write that, in the presence of sunlight. तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज. क्या सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज. ठीक है. ओके. एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. तो दिस इज द most important equation in this chapter. You need to know properly. Okay. Now we come to our next. See, this is the diagram of the photosynthesis. What happened, that this is the leaf. Okay, this is the leaf, and you are seeing this green pigment. Okay, these are the green pigment. Okay, what happened, that the light energy is trapped here. Okay, water enters through the tiny pores present on the surface of leaf, that is called stomata. We will read later about this. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो आप ग्रीन पिगमेंट देख रहे हैं, ये सारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. ये सारा क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये जो लाइट एनर्जी यहाँ देख रहे हैं आप, येलो कलर का ये मार्किंग है, ये कहाँ आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट तक आ रहा है, वो उसको ट्रैप कर रहा है. ठीक है. और वाटर जो है वो स्टोमाटा से जा रहा है. ठीक है. जब एक बार क्लोरोप्लास्ट ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वाटर जब मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है स्टोमाटा ही के थ्रू. ठीक है. और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, ये हम लोगों को मिल रहा है, शुगर मिल रहा है. ठीक है. कैसे हुआ, केमिकल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिला तो हम लोगों को क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज शुगर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट वी विल कम अबाउट दिस स्टोमाटा. ये देखिए आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये देखिए, ये जो है वो
क्लोरोफिल है। ये जो आपको ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है क्लोरोफिल, हम लोग ने बात किया ना अभी क्लोरोफिल, और ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो बेसिक डिफरेंस आप लोग जान लीजिए कि व्हाट इज क्लोरोफिल एंड व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखा दिया है कि क्लोरोफिल क्या है। ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इस सेल ऑर्गेनेल जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें जो ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वो इस पिगमेंट की वजह से दिख रहा है जो कि क्लोरोफिल है। ये क्लियर है ये स्लाइड? ठीक है, अच्छा हम लोग अभी क्या बात किए थे कि स्टोमाटा। ठीक है, तो we will read about now स्टोमाटा। तो क्या होता है कि अब देखिए कि स्टोमाटा क्या है। जो लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उनको ही हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट व्हेन वी लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ द लीव वी फाइंड द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल हम लोग देखे थे। हम लीव का क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो हम लोग को उसमें दिखता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सरफेस ऑफ द लीफ पे, जो कि क्या है, जहाँ पे हम लोग को स्टोमाटा मिलता है। सो स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड वी हैव स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या हेल्प करता है, जैसे हम लोग देखिए सनलाइट तो ट्रैप कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। वाटर कौन ट्रैप, वाटर कहाँ से मिल रहा है, बाय द रूट। ठीक है, बट ये जो CO2 है वो कहाँ से आ रहा है, तो CO2 जो है वो मिल रहा है हम लोगों को। CO2 कहाँ से आ रहा है, हम स्टोमाटा से। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जो है, ऑल्दो स्टेम एंड रूट ऑल्सो डू द गैसियस एक्सचेंज बट द मेजर पार्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज डन बाय द स्टोमाटा। ठीक है, तो गैसियस exchange occur through them. Okay, so plant can take CO2 from these cell. Okay, तो अब कैसे ये वर्क करता है। okay? अब वो क्या है कि अब आप बोलेगा कि स्टोमाटा का ही जरूरत क्या, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्यों। ठीक है, ये खुला ही रहता है ना, CO2 आता, गैसेस एक्सचेंज होता। ये क्या है, ये जो पोर्स अगर ये खुले रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी होगा प्लांट से। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। वेन एवर द प्लांट विल नीड द CO2 द स्टोमाटा विल ओपन एंड वेन दे विल नॉट नीड दिस गैसेस एक्सचेंज दिस CO2 द स्टोमाटा विल क्लोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वाटर लॉस है वो कॉम्पनसेट होगा। ठीक है, so if in the case of plant didn't need CO2 then the stomata will remain closed. Okay, we are seeing that this is the guard cell. Okay, we are saying this is the guard cell. So guard cells लुक लाइक दिस बीन शेप। ये कैसे दिखते हैं, बीन शेप के दिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब वाटर एंटर करता है इस स्मॉल पोर से तो गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वाटर जो है वो टेके ना, जब वाटर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो गार्ड सेल वो श्रिंक हो जाएगा और जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो पोर है वो क्लोज हो गया है। पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, यही है गार्ड सेल जो दिख रहा है ना, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये हम लोग को क्या, ये है अब हमारा स्टोमाटल पोर, ये हमारा स्टोमाटल पोर है। ठीक है, ये स्टोमाटल पोर है, जो ये ओपन और क्लोज हो गया ना, ये स्टोमाटल पोर। और ये जो है ये H2O जा रहा है, वो वाटर जा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है स्टोमा, स्टोमा मीन्स पोर। ओके, ये वैक्यूल है, जैसे हम लोग प्लांट में पढ़े हैं, ये सेल, ये हम लोग सेल चैप्टर में 9 में पढ़े हैं। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनिक वैक्यूल। ठीक है, और ये हम लोग को जो ये ग्रीन पिगमेंट आपको दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है, जब देख रही है वाटर दिखा रहा है, ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना, वो वाटर का मूवमेंट से क्या हो रहा है, ये गार्ड सेल जो है वो क्या हो गया, स्वेलन अप हो गया। तो ये जो गार्ड सेल वो स्वेलन अप हो गया, तो ये क्या है, स्टोमाटल पोर ओपन हो गया। यहाँ देखिए ये पोर क्या हो गया है, ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एग्जिट ऑफ वाटर, और वाटर जो है उसका एग्जिट हो गया। जैसे ही वाटर एग्जिट हो गया तो क्या होगा, ये जो पोर है वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये जो पोर है वो क्लोज हो गया, तो ये है क्लोज स्टोमाटल पोर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस का होता है, लीव का भी, तो इसलिए ये आपको दिखा रहा है एपिडर्मिस है। ठीक है, ये कुछ आयन है, तो आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये पोटेशियम आयन प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सो
Basically what we understand that opening and closing of stomata is governed by the guard cell. किससे ये हो रहा है? guard cell से ही govern होता है. जब ये swollen है मतलब basically what happened that it depend on the contraction and expansion of the guard cell. When they are expanded then they are open. जब वो एक्सपैंडेड होंगे गार्ड सेल तो क्या होगा? स्टोमेटल पोर ओपन होगा. और जब ही वो श्रंकन होंगे मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो पोर क्या है? क्लोज होगा. ठीक है, ये आपको ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर है. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो देखिए यही है कि स्टोमाटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज. हम लोग भी पढ़े कि द सरफेस ऑफ जो लीव के सरफेस पे टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग टाइनी पोर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव. ठीक है, लीव के अंडर साइड में हम लोग. सो ईच स्टोमा मतलब एक स्टोमा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल. हम लोग देखे अभी गार्ड सेल से विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर. वी हैव रेड before that this previous slide. And the water content of the guard cell is responsible for their function क्या है उसका? ओपनिंग और क्लोजिंग. वही बता रहा है कि वाटर जो कंटेंट है उसका ज़्यादा होगा तो स्वेल होगा तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा स्वेल होगा तो वो ओपन हो जाएगा और कम होगा तो वो क्लोज हो जाएगा तो वो श्रंकन हो जाएगा. ठीक है, ये था आपका क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट. अब आइए द प्रोसेस ऑफ, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप. हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अभी पढ़े वो 3 स्टेप में होता है. पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सनलाइट एनर्जी कहाँ से मिला? क्लोरोफिल से मिला. ठीक है, फिर क्या हुआ कि conversion of light energy into the chemical energy and splitting of water into the hydrogen and oxygen by light energy. या तो ये लाइट एनर्जी जो है वो जो सनलाइट एनर्जी जो ट्रैप किया क्लोरोफिल वो किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में. और ये जो वाटर का स्प्लिटिंग है वो किससे हो रहा है? लाइट से हो रहा है. किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो हम लोग ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में देखते हैं जो कि लिबरेट हो गया था. ठीक है, उसके बाद क्या है? रिडक्शन ऑफ carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy obtained by the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी. तो हम लोग ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया. ठीक है, किसी हाइड्रोजन से और क्या मिला हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है. आप यहाँ पे इसको समझिए, इस इक्वेशन से समझिए. यहीं पे था ना, यहाँ देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होके देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या मिला हम लोग को? ग्लूकोज मिला. अब ये सनलाइट जो है वो किसको स्प्लिट किया? वाटर को स्प्लिट किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ये हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हो गया, ये बाई प्रोडक्ट में हम लोग को लिबरेट हो गया. ठीक है, ये इक्वेशन था जो आपको यहाँ पे समझा रहा था. तो ये 3 स्टेप में हो गया जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्या कंडीशन होगा फोटोसिंथेसिस के लिए? ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? तो पहले हम लोग सनलाइट देख रहे हैं, हम लोग वहाँ नेचुरली अवेलेबल है जो कि ट्रैप बाय द क्लोरोफिल. द पिगमेंट, द ग्रीन पिगमेंट जो कि क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को. कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आता है? स्टोमाटा से लेती है प्लांट. ठीक है, और वाटर भी कहाँ से है? सॉइल से. ठीक, तो ये सारी कंडीशन है, इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. और ये आप जानिए ये सारे इनऑर्गेनिक ही कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करके जो प्लांट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज बना दिया. अब आपको या फिर मुझे अगर कोई सनलाइट दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, वाटर दे दो, क्या हम खाने में चेंज करेंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक. ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं. कुछ ये जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं. ठीक है भाई, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये सारा रॉ मटेरियल है. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को सराउंडिंग से मिलता है और वाटर हम लोग को सॉइल से मिलता है. क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा. देखिए ये सारी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी, इसमें से एक मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, हम लोग देखें कि आप बच्चे में आप पढ़े होंगे कि प्लांट जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है ना सराउंडिंग में, जो हम लोग बोलते हैं प्यूरिफाई द प्लांट हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर. ओके, तो ये ही चीज़ है. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और ऑक्सीजन को लिबरेट करती है मतलब बाई प्रोडक्ट. क्लियर है ये सारा स्लाइड? So now our next topic is heterotrophic. So we will read about this heterotrophic in the next class. For this it is all about the autotrophic.
हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।